we will discuss the poem Good Morrow by John Donne. As the title suggests, this poem also provides sense of waking up. This poem is also a love poem, and it is it talks about somewhat deep and philosophical, spiritual true love. Let's start the text. I wonder by my troth what thou and I did till we loved. Till we loved. The poet says that I wonder, I am surprised that before we fell into love, what were we doing? यानी पोइट कहता है कि जब हमने हमारा प्यार हमारे प्यार से पहले हम लोग क्या कर रहे थे? आई एम सरप्राइज्ड, हम क्या कर रहे थे? Were we not weaned till then, but sucked on the country pleasures childlessly? Look at the term childless. वो कहते हैं कि we were busy in country pleasures. We were busy in physical pleasures, natural pleasures. Our behavior was childish. हम बच्चों की तरह थे. Our nature was childish. We used to love physical pleasures, we used to love natural pleasures, surface kind of pleasures. Or snorted we in the seven sleepers den. Snort का होता है खराटे भरना, डीप स्लीप, और den का मतलब होता है केव. अब ये जो सेवन स्लीपर्स den है, ये एक रेफरेंस है अर्ली क्रिश्चियन स्टोरी है कि एक बार सेवन जो क्रिश्चियंस थे तो उनको एक राजा मारना चाहता था, एंड इसलिए उन्होंने अपने जान बचाने के लिए वो एक केव में गए और वहाँ काफ़ी ईयर्स तक वो सोते रहे. तो ये वहाँ का रेफरेंस है. तो इट मीन्स कि बिफोर आवर लव वी वर इन डीप स्लीप, आवर सोल्स वर स्लीपिंग, एंड वी वर बिजी इन फिजिकल थिंग्स, वेरी सरफेस लेवल थिंग्स. Our behavior was childish, this kind of thing. It was so, but this all pleasures fancy be. कहते हैं अब मैं जब कंपेयर करता हूँ तो मुझे वो जो प्लेजर्स हैं, जो पहले के प्लेजर्स हैं लव से पहले के, वो बड़े फैंसी से लगते हैं, बड़े लाइट लगते हैं, बड़े हल्के लगते हैं. If ever any beauty I did see, which I desired and got, it was but a dream of thee. वो कहता है if ever, if found any beautiful girl whom I liked and got, she was just a shadow or reflection of your beauty. So in this stanza the poet compares the two states, one state before the love and another one is after the love. So before the love state was childish state. He was very innocent and very childish, physical loving, and their souls were sleeping, they were not awake. So this kind of sense the poet is making in the first stanza. Now in the second stanza, the poet will now present the present state, yani after love stage. Now what happened? Now good morrow to our waking souls. Look at this phrase, waking souls. Now our souls have waken up. वो जाग गई हैं. Good morrow, good morning. यानी they have woken up now. They have waken up now. Which watch not one another out of fear. And our both souls, they look at each other with love. They are not fearful to each other. For love, all love of other sides control. वे कहता है after being fallen in love, after falling in love, now all love of other things is gone.
अब हमें किसी बाकी जो साइट्स हैं, बाकी जो प्लेजर्स हैं, अब हमें उनका कोई मतलब नहीं बचा है. दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस टू अस बिकॉज वी आर इन लव. एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर. और जो अब हमारी सोल्स हैं, जो हमारी लविंग सोल्स हैं, अब उन्होंने एक छोटा सा अपना रूम बना लिया है. और उस छोटे से प्यार के जो रूम है, लव का जो रूम है, अब उसमें सब कुछ है. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. और यहाँ अब आपको, अगर आप, ये एक रिमाइंड कराता है वही सेंस जब जो द सन राइजिंग पोइम में भी यही थी कि जो लव है, जो लवर्स का जो रूम था, इट प्रेजेंट्स द वर्ल्ड, इट प्रेजेंट द यूनिवर्स, वो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. तो यहाँ भी वही कह रहा है, जो हमारा स्पिरिचुअल लव है, जो हमारा ट्रू लव है, जो हमारा सोल्स का लव है, अब इसमें कोई फियर नहीं है. और अब हमें कुछ ही और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है. वी डोंट नीड एनी थिंग. और नाउ आवर लव इंक्लूड्स एवरीथिंग. नाउ ही सेज, लेट सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन. वो कह रहा है कि लेट सी डिस्कवरर्स, बिकॉज जब ये पोइम लिखी गई 17th सेंचुरी में, तो आफ्टर रेनेसां, तो देर वर that was world of discoveries. New lands were being discovered, new scientific discovery was happening. तो क्या, लेट सी डिस्कवरर्स, कि खोजने दो लोगों को दुनिया की नई नई चीज़ें, नई नई जगहें. लेट मैप्स टू अदर्स, वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन. और लेट मैप्स टू टेल द पीपल वेयर द वर्ल्ड एग्जिस्ट. वो कहता है कि दुनिया को, people are busy in discovering the world, making the map, people are busy in finding the world and other things, but we are lovers, we are not bothering about these things. हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. Let us possess one world. This is very important line. Let us possess one world. Possess का मतलब रखें. आइए हम दोनों एक वर्ल्ड बनाएं. Let us make our own world. Each has one and each one, and our world is one. Our world of love is united. So this stanza present the mindset, the state of love of two true lovers. For them, their souls are united, their souls are not fearful, they don't want anything, and they have their own world, a world which includes everything. Now the third stanza and the last stanza, very beautiful lines. My face in thine eyes, thine in my face, thine in my appears. Ki in your eyes my face gets reflected, and in my eyes your face appears. And true plain hearts do in the faces rest. वो कहता है, मेरी आंखों में तुम दिखती हो, तुम्हारी आंखों में मैं दिखता हूँ. एंड इन ट्रू प्लेन हर्ट्स डू इन द फेसिस रेस्ट. और जो हमारे जो फेस हैं हमारे, उनमें एक ट्रू हर्ट्स रिजाइड करते हैं, उनमें सच्चे दिल रह रहे हैं. Where can we find two better hemisphere without sharp north, without declining west? और वो कहता है, अब यहाँ वो है, जैसे कि आपको पता है कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक इमेजरी का यूज करते थे. ज्योग्राफिकल इमेजरी. अब यहाँ जो इमेजरी यूज की है उसने टू हेमिस्फेयर. अब आपको अगर पता है कि अगर आप ज्योग्राफी जानते हैं तो एक हमारा ग्लोब अर्थ है, और अर्थ में ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध. सो आवर अर्थ इज डिवाइडेड इन टू हेमिस्फीयर. वो कह रहा है कि वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स. और कह रहा है कि वी आर लाइक टू हेमिस्फीयर्स. He compares his love to hemisphere.
कहते हैं हमारी जो हम दो लोग हैं उन दो हेमिस्फीयर की तरह हैं, विदाउट शार्प नॉर्थ। बट हमारे हेमिस्फीयर जो है, हमारे जो वर्ल्ड है, उसमें कोई शार्प नॉर्थ नहीं है। आपको पता है कि नॉर्थ में, नॉर्थ पोल जो होता है बड़ा विंटर होता है, बहुत शार्प विंटर होता है नॉर्थ पोल में। और विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, और हमारा वेस्ट भी नहीं है जहाँ सनसेट होता है। तो कहता है कि हमारा जो वर्ल्ड है, हमारे जो हेमिस्फीयर हैं, वो कोल्ड नहीं है, वहाँ सनसेट नहीं होता। इट मीन्स वहाँ कोई कोल्ड रिप्रेजेंट करता है इनडिफरेंस को, उपेक्षा को। सनसेट का मतलब रिप्रेजेंट करता है डिके को, खत्म होने को। तो कहता है कि हमारा जो लव है उसमें इनडिफरेंस नहीं है, दैट इज वार्म, वो एनर्जी से भरा हुआ है। और वो डिके भी नहीं है, डिके का मतलब वो खत्म भी नहीं हो सकता, दैट इज परमानेंट, कभी डिक्लाइन भी नहीं हो सकता। सो अगेन ब्यूटिफुल मेटाफिजिकल कंसीट इज देयर, कि उसने जो लवर्स हैं उसको कंपेयर किया उसने हेमिस्फीयर्स के साथ। वट एवर डाइज वॉज नोट मिक्सड इक्वली। अब रेनेसा पीरियड में जब ये पोएम लिखी गई तो एक फिलोसफिकल बातें थी कि दुनिया में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई चीज़ वेल मिक्सड नहीं है, अच्छे ढंग से मिक्स नहीं है, तो ख़त्म हो जाती है। वो कहता है कि अगर कोई चीज़ प्रॉपर मिक्सचर नहीं है तो वट एवर डाइज, वो ख़त्म हो जाती है, ये माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड। इफ़ आर टू लव्स बी वन एंड दाउ एंड आई। अब वो कह रहा है बट आवर जो, हमारा जो टू लव्स, हमारा जो लव है, हमारी जो टू सोल्स हैं वो इक्वल हैं, वो इक्वली मिक्सड हैं, वो हारमोनियस हैं, उनके अंदर एक बैलेंस है, दे आर वेल कनेक्टेड, वेल यूनाइटेड। लव सो अलाइक दैट नन कैन स्लैकन, नन कैन डाई। और वो इतनी वेल कनेक्टेड हैं, इतनी हारमोनियस हैं, एक दूसरे से इतनी मिक्स हुई हैं, इक्वल इक्वल हमारा प्यार एक दूसरे से, कि ना तो अब वो प्यार हमारा डिके हो सकता, स्लेकन का मतलब कम हो सकता, और ना वो मर सकता। इट मीन्स आवर लव इज इमोर्टल। इमोर्टल, हमारा लव अमर है, इट इज एटर्नल, इट इज द बाउंड्री बियॉन्ड द टाइम लिमिट्स, टाइम से भी बाहर है, और इमोर्टल है, डेथ से भी बाहर है। बिकॉज आवर लव इज ट्रू, आवर सोल्स आर वेल कनेक्टेड, आवर सोल्स आर वन। ओके, सो this was the poem The Good Morrow. So in the next lecture we will meet again. Until then, take care.